Career counseling basically is an attempt to fit the student into the correct career. Once a person takes science or commerce or arts, often the person gets kind of straitjacketed into that particular slot. क्या career choose करते हो, that should not be determined और या उसका कुछ link नहीं होना चाहिए to your percentage. Just because I don't know English properly, there is no reason for me to have lower self confidence. What is your take on study abroad? क्या हर एक स्टूडेंट को एक बेटर करियर के लिए फॉरेन जाना चाहिए या फिर इसलिए फॉरेन जाना चाहिए कि उसका करियर, उसका जो पर्टिकुलर करियर वो वहां पर बेटर है? Hi guys, welcome to the channel once again. This is Saurabh and आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर शोभा मेनन के साथ। वो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और इसके साथ साथ सबसे खास बात यह है कि वो एक बहुत ही बढ़िया टीचर है, बहुत ही बढ़िया टीचर, और बहुत ऐसे अच्छे टीचर जिसने बहुत सारे स्टूडेंट्स की जिंदगी बदली है। सो शी इज़ एन एकेडमिशियन, 28 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और वो अपने 28 साल के एक्सपीरियंस की जो जर्नी है वो हमारे साथ आज शेयर करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे और हमें बहुत सारा सीखने मिलेगा। ओवर टू डॉक्टर शोभा मेनन। Thank you, Saurabh, for that fantastic introduction. Well, a little bit about myself. I started my career way back in 1989 as a faculty of psychology. Basically, I am a postgraduate in industrial psychology, which I topped up with a doctorate much later in life in the year 2008. I started as an academician, as a faculty in a college, and then much later in 2016, I moved on to the role of the principal of Cosmopolitan Walia College. Then, somewhere along the way, very recently, I decided to move on, and post my retirement, I have now taken on a new role. I'm now a part of DRM Global Education, a company which is into study abroad counseling as well as career counseling. Well, that's something about myself. Good to know about that. So, करियर काउंसलिंग की बात करें तो हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो ये चैनल देखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको हमेशा करियर काउंसलिंग के बारे में कहीं ना कहीं नॉलेज चाहिए होती है। तो मैं कहूँगा कि आप सब स्टूडेंट्स, अगर आपको कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपको कोई सवाल है मन में, तो आप डेफिनेटली इस चैनल में या नीचे इस वीडियो के नीचे आके कमेंट जरूर डाल देना और वो मैं सवाल मैडम तक पहुंचा दूंगा और उनके जवाब आप तक लेकर जरूर आऊंगा। लेकिन आगे बढ़ते हुए मैम से थोड़ी और बातें करेंगे और कुछ और समझेंगे। करियर काउंसलिंग क्या है, इस फील्ड में होता क्या है, किस टाइप की करियर काउंसलिंग होती है, मतलब क्या आपको करियर काउंसलिंग की जरूरत है, ये मैडम से आज हम जानेंगे। Well, career counseling basically is an attempt to fit the student into the correct career. It's like एक slot में person को बिठाना है. That is what career counseling is all about. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आजकल उनको अपने करियर के बारे में पता नहीं होता, ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज आफ्टर अ पॉइंट क्या है, एजुकेशन तो ले लेते हैं, कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन हो जाती है, लेकिन उसके बाद करना क्या है पता नहीं है। Right. So, well, the earlier career counseling is done in life, the better it is. So, an ideal age, according to me, should be when the child or the student is somewhere in the 9th or 10th. Okay. Because at that point, the person after 10th, at least in the Indian setup, kids choose their stream. Whether you're going to do arts, commerce, science, that choice happens after class 10th. Right. So if you take your career counseling somewhere when you're transitioning from 9th to 10th or in 10th standard, right from your choice of stream, because what happens is in India, once a person takes science or commerce or arts, often the person gets kind of straitjacketed into that particular slot. Right. And moving from one to the other gets a little difficult.
So therefore, if you take it at that particular age, that means at around the time when you're in class 10th, it would be the best thing. That is the best. And basically, what happens is there is psychometric testing that happens. The idea is to capture the person's interest, the person's aptitude, and the person's persona, because ultimately all these three things together determine your career choices. Right. Your final choice, what you will do, okay, is a culmination of all these things put together. So we start with psychometric testing. A complete 360-degree profile of the person is created, so that we are able to identify what are the skills, and based on what are the skills, what are the interests, what are the aptitudes, the likely careers are identified. Nice. Good So to know that's how that. it goes. सुपर. सो अभी 10th स्टैंडर्ड के रिजल्ट्स आउट हैं और लोग 11th एंड 12th में एडमिशंस लेने लगे हैं. साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, क्या चूज करना चाहिए, ये सबसे बड़ी दुविधा होती है हमें. और ये दुविधा का निवारण शायद हम एक प्रिंसिपल से ही जान सकते हैं कि वो हमें बताए कि साइंस किसे लेना चाहिए, आर्ट्स किसे लेना चाहिए या कॉमर्स किसे लेना चाहिए. स्पेशली मुंबई में जब एडमिशन की सीजन ऑन है, लोग इस भागदौड़ में लगे हुए हैं. कभी कभी माँ बाप ऐसे बोल देते हैं कि 90% आ गए तो साइंस ले लो. बट क्या ये सच है कि परसेंटेज डिफाइन करेगा आपका करियर? नॉट एट ऑल. दैट इज व्हाट आई वुड से. मेरा कहना है कि आप क्या करियर चूज करते हो, दैट शुड नॉट बी डिटरमिन्ड, और या उसका कुछ लिंक नहीं होना चाहिए टू योर परसेंटेज. क्योंकि परसेंटेज किसी का 10th में अच्छा आया, ये बेसिस नहीं होता करियर चॉइस का. देन व्हाट इज द बेसिस? कहाँ से Correct. हम डिसाइड करें कि कौन सा करियर करना चाहिए? देखिए, एक स्टूडेंट जो है वो सिर्फ अपने मार्क्स से डिफाइंड नहीं होना चाहिए. See, if you look at me, I'm not just my marks. मेरे में और कई अलग सी खूबियाँ होगी जो सिर्फ मेरे मार्क्स, व्हेन हम सिर्फ मार्क्स देखते हैं और सिर्फ मार्क्स के हिसाब से जब हम करियर चॉइस करते हैं तो हम बहुत लिमिट कर देते हैं इंसान का चॉइसेस. ओके, सो डेफिनेटली इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन दैट. बच्चे का इंटरेस्ट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. मेरे पास अच्छे मार्क्स है, बट मुझे इंजीनियरिंग करने में इंटरेस्ट नहीं है. आई एम एन आउटडोर पर्सन, मुझे फिजिकल एक्टिविटी करने में इंटरेस्ट है. फिर आप मुझे आईटी इंजीनियर बना के एक कंप्यूटर के आगे बिठा दोगे तो मैं टोटली फ्रस्ट्रेटेड हो जाऊंगी, बिकॉज आई एम एन एक्सट्रोवर्ट. मुझे लोगों से मिलना अच्छा लगता है, सोशलाइज करना अच्छा लगता है, मुझे फ्रेंड्स अच्छे लगते हैं, मुझे फिजिकल एक्टिविटी अच्छा लगता है. सो दैट ऑल्सो शुड बी कंसिडर्ड. आई मीन इट शुड बी अ Correct. मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग पुट टुगेदर. So it should not just be marks. And if I may quote this, my own example, I was extremely good in studies and I got pretty good percentages, pretty good grades in my class 10th. Yet I chose to take arts. Okay. I have taken arts and I have made a decent success of my life. हाँ, सो ये भी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है लोगों के, आर्ट्स और कॉमर्स लेंगे तो शायद सक्सेस नहीं मिले. ऐसा ऐसा दिमाग में लोगों के रहता है. See, I would have been a very average science student because I had no inclination towards science. I used to love reading books. I had my language skills, my vocabulary was good. So therefore, by default, मैंने arts लिया. And I was lucky. My parents supported my decision because the period मैं जिसकी बात कर रही हूँ, I passed my class 10th in the year 1982. Oh, That's a long time ago. absolutely. And उस वक्त typically जिस टाइप के percentages मुझे मिले थे, I would have got into any of the top colleges in Mumbai for science. Yet I chose to take arts, and I think I have done pretty well. अच्छा किया है, अच्छा रहा है. राइट life so far. डिसीजन एंड हियर यू आर. तो ये सब Precisely. स्टूडेंट्स को एडवाइस रहेगी कि अपना राइट डिसीजन ले, परसेंटेज के हिसाब से अपना करियर मत चुने.
कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, ये तो अच्छे परसेंटेज आते हैं और हम आर्ट्स ले लेते हैं, लेकिन कभी कभी उल्टा भी हो जाता है कि परसेंटेज कम है और हमें साइंस लेनी है। हम्म, तो ऐसे हालातों में क्या किया जाए, क्योंकि बहुत सारी टॉप कॉलेजेस तो उनको रिजेक्ट कर देगी, लेकिन कुछ छोटी मोटी कॉलेजेस है तो शायद उनको एक्सेप्ट कर ले। हम्म। तो ऐसे सिनेरियो में स्टूडेंट को करना क्या चाहिए? सी, अगर आप एकदम ही डिसाइडेड हो कि मैंने साइंस ही करना है एंड आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, देन यू शुड टेक दैट वॉट एवर यू हैव डिसाइडेड, वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेक। भले आपको टॉप कॉलेजेस में न मिले, बट विच एवर कॉलेज यू हैव गॉट, बिकॉज इवन आफ्टर डूइंग 12th साइंस, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ इंजीनियरिंग लेना है या सिर्फ मेडिकल लेना है। दैट वो सिर्फ ऑप्शंस है नहीं, करेक्ट। ऐसे कई ऑप्शंस होते हैं। जैसे मेनी पीपल डोंट नो, आप कॉमर्स लेके अगर आपने मैथ्स लिया है तो आप बीएससी आईटी कर सकते हो। करेक्ट, ये एब्सोल्युटली। बहुत लोगों को पता नहीं है। अक्सर पेरेंट्स को लगता है बच्चे ने आईटी नहीं लिया था 11th 12th में, अब वो कैसे आईटी ले सकता है। करेक्ट। पेरेंट्स को ये पता नहीं होता कि बीएससी आईटी का जो मेरिट लिस्ट बनता है उसका बेसिस मैथ्स के मार्क्स है, नॉट ओवरऑल मार्क्स। दिस काइंड ऑफ बेसिक इंफॉर्मेशन भी पेरेंट्स के पास अक्सर नहीं होता, एंड बच्चे को बोलता है तूने कॉमर्स लिया है तो यू कैनॉट डू दिस। इट इज नॉट लाइक दैट, मैथ्स लेना जरूरी है। सो ये अगर अगर आपको आगे आपको जो भी करना है उसमें अगर आप साइंस लेके भी आप कई मल्टीपल फील्ड्स में आप जा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको इंजीनियरिंग ही करना है या मेडिकल ही करना है या कुछ ऐसे। करेक्ट। सो राइट सिलेक्शन ऑफ अ फील्ड एट द इनिशियल एज इटसेल्फ इज नेसेसरी। तो आपको आइडेंटिफाई कर लेना होगा कि आपकी स्ट्रेंथ किस राइट, सब्जेक्ट में है, और उस स्ट्रेंथ के हिसाब से आप आगे बढ़े, ना कि जो आउटकम आया है 10th का। क्योंकि कभी कभी वो आउटकम बहुत सारे बेसिस पे आता है। कभी आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाई, या फिर आप उस टाइम एग्जाम के टाइम डर गए थे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपका आउटकम बिगाड़ सकती हैं, लेकिन राइट। शायद आपका इंटरेस्ट जो पहले से है या फिर आपकी स्ट्रेंथ है वो अलग हो सकती है। राइट। एंड डिफरेंट करियर्स की अलग अलग ज़रूरतें हैं, अलग अलग इंटरेस्ट चाहिए, अलग अलग पर्सनैलिटी टाइप्स चाहिए। If I can just give you an example, okay? यस। Somebody whose marks are very good in maths, हम्म। maths and science, maths science, okay? In the Indian setup, हम बोलेंगे कि इसको engineering करना चाहिए, but हाँ। very typical, टिपिकल। very typical. However, when you do a career profiling, when you do a 360 degree profiling of the candidate, आपको अक्सर ऐसे भी दिखेगा कि physical activity also is high, ओके। social skills are also high. ओके, सो इन करियर काउंसलिंग इवन दिस इज द पार्ट यू कैलकुलेट। Yes, we consider all these factors. So बाकी social skills, लोगों को लगता है कि सिर्फ एक एग्जाम है, वो देनी है और वो दिमाग की टेस्ट हो रही है खाली। no, because जब हम टेस्ट करते हैं we ask them what kind of things you like to do. हम्म। अगर आपको, see you may be good in maths and science, but हो सकता है कि आपको सैटरडे संडे ट्रेकिंग अच्छा लगता हो। हम्म। सो ये तो आपका इंटरेस्ट हुआ, तो Correct. फिजिकल एक्टिविटी आपके लिए, यू लाइक फिजिकल एक्टिविटी, ओके। सो ये भी आपको कंसिडर करना है। सो देन मे बी अ करियर इन द आर्म्ड फोर्सेस may be a हाँ। better option for you. करेक्ट। If you have, if you have represented the college in athletics, etc. Just because you're good in maths and science doesn't mean, यू हैव टू जंप इन इंजीनियरिंग। because such a person after a point of time will find himself very frustrated, and by the time it may be a little too late. So the earlier you do it, the better you better. you are able to channelize the energies of the individual in the right direction. करेक्ट। सो सो दैट वाज गुड टू अंडरस्टैंड। लेकिन एक और बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है भाषा, लैंग्वेज। क्योंकि हम दिमाग की टेस्ट जरूर लेते हैं, हम साइंस की मैथ्स की टेस्ट ले लेते हैं, लेकिन जो हमारी भाषा है, जिस भाषा में हमें बात करनी है, और आज के दौर में इंग्लिश जिसे बहुत ही प्रोमिनेंट माना जाता है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? See, English is considered prominent because it is a kind of globally accepted language. Yes, definitely knowledge of English is good, it is helpful, but just because I don't know English properly,
there is no reason for me to have lower self-confidence. It is just a language, and to begin with, it's a foreign language. So many times when we are asked to fill up a form, how many foreign languages you know, our response is नहीं, मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे ना फ्रेंच आता है ना जर्मन. अरे भाई, इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज, इट इज नॉट योर लैंग्वेज. और हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हमें लगता हैं. है कि इंग्लिश हमारी लैंग्वेज है. राइट, हम भूल जाते हैं. सो जस्ट नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज नॉट नोइंग इंग्लिश शुड नॉट होल्ड यू बैक. There are enough options online these days to pick up English. Correct. Free of cost, there are so many of them Correct. available, and uh, people can definitely succeed even when they have had their basic education in the vernacular medium. So many of our parents have studied in the vernacular medium and risen to managerial positions in life. Absolutely. So language is not a barrier. भले आप vernacular medium में आपने पढ़ाई की हो, लेकिन आप एक लैंग्वेज सीख सकते हो. जैसे बहुत सारे लोग फॉरेन जाते हैं और वहाँ की लैंग्वेज सीख के वहाँ सक्सेस ले लेते हैं. Like people go to France and they learn French. And the French are so proud of their language. They do not accept English. If they will not accept English, they will want everything in French. For that matter, Germany. Correct. If you have to study in Germany, you have to pass German. a test. Yes, because most of the courses are offered in German. So you have to pass the test for German to study there. लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा उल्टा है. हमें हिंदी नहीं पसंद और हमें कोशिश करते रहना होता है कि कोई ना कोई फॉरेन लैंग्वेज या स्पेशल इंग्लिश में हम मास्टर कर जाएं. True. एंड वी आर नॉट रियली प्राउड अबाउट आवर ओन लैंग्वेज. सो ये थोड़ी दुख की बात है ज़रूर, लेकिन मेरा मानना इतना ही है कि आप अपनी लैंग्वेज अच्छे से जानो और उसके साथ साथ और चाहे जितनी मर्जी लैंग्वेज सीखो, बहुत बढ़िया है. The better. The better. Okay, so since you spoke about foreign, you spoke about the countries abroad. What is your take on study abroad? क्या हर एक स्टूडेंट को एक बेटर करियर के लिए फॉरेन जाना चाहिए, या फिर इसलिए फॉरेन जाना चाहिए कि उसका करियर, उसका जो पर्टिकुलर करियर वो वहां पर बेटर है? ऐसा तो नहीं है कि हमारे देश में अपॉर्चुनिटीज की कमी है इसलिए चले जाना चाहिए. What is your take on that? See, ऐसा नहीं है कि हर एक स्टूडेंट को जाना चाहिए. इट इज़ नॉट लाइक दैट. इट डिपेंड्स अपॉन आपके गोल्स क्या है. अल्टीमेटली एवरी डिसीजन जो आप लेते हो, इट इज़ अल्टीमेटली डिपेंडेंट अपॉन आपके गोल्स क्या है. okay? अगर आप अब्रॉड सेटल होना चाहते हो, देन डेफिनेटली स्टडीइंग अब्रॉड एक एडवांटेज आपको ज़रूर मिलता है. उनकी डिग्री आपके पास है. सो अगर आप से कैनेडियन सिटीजनशिप कैनेडियन परमानेंट रेसिडेंस फॉलोड विद अ सिटीजनशिप लेना चाहते हो, अगर आपके पास वहाँ की डिग्री हो तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू. आसान हो जाएगा. एंड प्लस यू विल, इफ यू गो यंगर, आपको एडजस्टमेंट विद दैट कल्चर ईजियर होगा. आप आफ्टर सर्टेन एज आप जाओगे तो आपको डिफिकल्टी होगा. Okay. At the same time, we also have very good institutions in this country. What advantage does study abroad give you? आप जब बाहर पढ़ने जाते हो तो आपको क्या एडवांटेज मिलता है? See, basically उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमसे काफ़ी अलग है. इंडिया में काफ़ी एम्फेसिस रोट लर्निंग पे है. बाय हार्ट आपने सीखना है, आपने आंसर्स लिखने हैं. वहाँ पे काफ़ी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड application based teaching and learning होता है. So when you are learning something, आप सिर्फ theoretical knowledge हासिल करके आप एक एग्जाम नहीं पास करते. आपको वो knowledge कैसे कहाँ अप्लाई करना है ये आप जानते हो. Right. It's very application based. So there is an upper hand when you study there. When you get into the field of work. See, that is where the difference between having theoretical know-how and knowing how to apply it makes a difference. That's the basic difference. So वहाँ पे काफ़ी application based learning है. Secondly, आपको immense networking opportunities मिलते हैं. You are aware, आज की दुनिया networking की दुनिया है. You have to network. So nobody is going to come आपके घर पे कोई आके आपको जॉब या कुछ
पढ़ने की अपॉर्चुनिटी नहीं देने वाली जब तक आप बाहर नहीं जाके नेटवर्क करते। तो व्हेन आप आउटसाइड द कंट्री जाते हो तो आपको इमेंस नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, दूसरे अलग अलग देशों के लोग वहाँ पढ़ने आते हैं। इट्स नॉट जस्ट इंडियंस, बहुत सारे फॉरेन अलग कंट्रीज से लोग आते हैं, वेदर इट इज इन यूएस, कनाडा, यूके, कहीं पे भी आप बोलो, पीपल कम फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। आप वहाँ जाते हो, 1-2 साल उनके साथ रहते हो, वो आपके फ्रेंड है, सो ऑब्वियसली लाइफ लॉन्ग कनेक्ट आपको उनके साथ बनता है। तो एंड आफ्टर अगर आप रिटर्न भी होना चाहते हो यहाँ के अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हो या कुछ भी यहाँ इंडिया में रिटर्न आके भी करना चाहते हो, ये जो आपने कनेक्शंस बनाए वहाँ, दैट विल ऑलवेज सर्वाइव, दैट विल ऑलवेज हेल्प यू, दैट विल आपको एक एज, एक स्टेप अहेड आपको रखेगा, जो कि आपको यहाँ पे रह के शायद न मिले, नॉट नहीं ही मिलेगा, बट येस द चांसेस आर लोअर, दैट एक एडवांटेज आपको मिलता है। एट द सेम टाइम आई विल से दैट यू हैव टू कीप योर रिसोर्सेज इन माइंड। स्टडी अब्रॉड इज नॉट cheap. It is expensive. It is expensive, and at the same time, no harm in aspiring. Sky is the limit for the person who has aspirations and is ready to put the effort. Some time in your life, आप जाइए, भले 1 साल के लिए, get that education, get that experience. It is worth that. Correct. So good to know that. आई थिंक जो हमारे दिमाग में मिथ है, उस मिथ को मैडम ने बस्ट करके और एक क्लियर पिक्चर ज़रूर दी है। और अगर आपको स्टडी अब्रॉड के लिए कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और हम वो सवाल मैडम तक पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको उनके जवाब ज़रूर मिले। और मैं इस डिस्क्रिप्शन में मेरे क्या करूँगा कि मैडम के कुछ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा, अगर इन केस आपको उनसे कम्युनिकेट करना हो तो आप कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं अपने करियर के बारे में, आप पूछ सकते हैं फॉरेन एजुकेशन के बारे में, एंड आई एम श्योर मैम वुड बी मच हैप्पी टू हेल्प ऑल द स्टूडेंट्स। Sure. It's my passion. Mentoring students has always been my passion, and I have always followed my passion. And my advice to all young people is follow your passion, then you will enjoy every day of your life. So, हमने मैडम से फॉरेन एजुकेशन के बारे में तो जाना, लेकिन हमारे देश में भी न्यू एजुकेशन पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो रही हैं, जिसको एनईपी बोला गया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोला गया है। ये पॉलिसी बहुत सारा बदलाव लेकर के आ रही है हमारे एंटायर एजुकेशन सिस्टम में। तो हम मैडम से जानेंगे कि ये एनईपी पॉलिसीज क्या बदलाव लेके आएगी जो स्टूडेंट्स को बहुत सारा बेनिफिट दिलाए। Well, NEP जो है ये this has been introduced last year in some colleges. I'm talking with reference to Mumbai. तो कुछ colleges में last year ही implement हुआ था, पर ये साल से सारे colleges में NEP is being implemented, mandatory है, सारे colleges को करना है। अब बच्चों के लिए इसमें क्या है? बच्चों के लिए इसका biggest benefit यही है कि आप मल्टीपल कोर्सेस चूज करके पढ़ सकते हो। इसका ये मतलब है कि अगर आप कॉमर्स कर रहे हो, अब तक हमारे सिस्टम में कैसा था कि इफ अ स्टूडेंट इज डूइंग बीकॉम, उसके टिपिकल सब्जेक्ट्स कैसे होते थे, वो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स होते थे, इकोनॉमिक्स, मैथ्स एंड अकाउंट्स, दीज वर द ब्रॉड एरियाज ऑफ सब्जेक्ट्स। अब क्या होता है विद एनईपी, आप कंपल्सरली कोई और फील्ड का भी सब्जेक्ट ले सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं कॉमर्स कर रही हूँ, बट मुझे मे बी वेब डिजाइन में इंटरेस्ट है। ओके, आई कैन टेक अ कोर्स इन वेब डिजाइन इफ माई कॉलेज इज ऑफरिंग दैट। सो कॉलेजेस हैव टू ऑफर कोर्सेस cutting across streams. That means कॉमर्स बच्चों को आप साइंस का या आर्ट्स का कोई कोर्स आपको देना कंपलसरी है। ओके, सिमिलरली साइंस का बच्चा है बट मुझे
फाइनेंशियल लिटरेसी चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली मैं साइंस लूँ, मैं इंजीनियरिंग करूँ, एंड आई डोंट नो हाउ टू हैंडल माई इन्वेस्टमेंट्स, आई विल बी अ फेलियर इन लाइफ. that is biggest problem with all the science students. हाँ, आई विल बी अ कंप्लीट फेलियर इन माई लाइफ. सो देयरफॉर आपको अगर फाइनेंशियल लिटरेसी या हाउ टू हैंडल योर पर्सनल फाइनेंसेस पे कोर्स करना है, तो दैट ऑप्शन यू आर हैविंग. सो दैट इज बेसिकली पर्सनल फाइनेंस और फाइनेंस कोर्सेज और टैक्सेशन, ये सब जो है ये प्योरली कॉमर्स के बच्चों को आता था. आर्ट्स एंड साइंस किड्स नेवर न्यू एनीथिंग अबाउट दिस. Correct. Okay, whereas now you are having the option of studying this as a course, as one of the subjects. So Very that you are so basically, therefore what we are foreseeing is, हम देख रहे हैं कि आगे चल के जो बच्चे का जो एजुकेशन के एंड से जो डेवलपमेंट होगा वो काफ़ी राउंडेड होगा, इन द सेंस इस तरीके से जैसे अब होता है कि कॉमर्स के बच्चे को सिर्फ कॉमर्स आता है और साइंस का कुछ नहीं आता, या साइंस के बच्चे को सिर्फ साइंस आता है और somebody is doing BSc chemistry only knows BSc chemistry. Absolutely. Okay, that is not going to be the case. And a very important component of the NEP which is being introduced is IKS, or the Indian Knowledge System. Okay. Very crucial, which unfortunately somewhere in our जो रेस हम लगा रहे हैं इंग्लिश एजुकेशन के पीछे, उसमें हम कहीं ये भूल गए हैं दैट इन द एरिया ऑफ कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, कुछ भी बोलो आप, फिजिक्स लो, एस्ट्रोनॉमी लो, मैथ्स लो, इतना कुछ इंडिया में है, isn't it? There's so Correct. much, there are so many renowned people in Indian history who have a role to play यहाँ पे, बट हमें पता ही नहीं, हमारे बच्चों को पता नहीं है. सो वो भी एक बहुत क्रूशियल एलिमेंट है जो NEP में लाया गया है, विच होपफुली बेटर लेट देन नेवर बच्चे अपने बारे में, अपने देश के बारे में, अपने कल्चर के बारे में समझेंगे. जो अगर आप देखेंगे एवरी फॉरेन कंट्री they emphasize their own culture. Every country, you go to Japan, you go to France, they are so proud of their culture. वो pride हमको हमारे culture में बच्चों में लाना है, which one of the things that NEP will do hopefully is this, which Very I think nice. is a very बहुत positive चीज़ है for our future generation. वेरी गुड टू नो. सो आपने ऑलरेडी जान लिया है थोड़ा सा कि NEP क्या बदलाव लाने वाला है, लेकिन शायद आपको उस बारे में भी थोड़े से और सवाल ज़रूर होंगे, तो वो सवाल भी आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिख देना और ये सवाल मैडम तक हम पहुंचा देंगे. सो आपके साथ बातचीत करके मज़ा आया, ये जर्नी Same here. बहुत इंटरेस्टिंग रही, एंड और भी आगे हम मिलते रहेंगे और बहुत सारे गेस्ट लाते रहेंगे. और इनकेस अगर आपको डॉक्टर शोभा मेनन से कुछ ना कुछ और पूछना है तो आप वो सवाल मुझे पूछते रहिए, मैं मेक श्योर करूंगा कि आपको उनके जवाब मिले. एंड विद दैट बीइंग सेड, फॉलो दिस चैनल फॉर मोर. लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो उन लोगों तक जिनको इसकी ज़रूरत है. थैंक यू.